Good morning to all of you. Again, we are going to see the practical approach of all the data structure topic that we have seen in last class. This is the program for binary search. You can note down here binary search through function definition. So we have seen about binary searches. One is low procedure, then second one is high index, then one is mid equals to low plus high divided by 2. So this is for integer float. Double slash is useful for integer division. So just see this practical. I'm going to display and execute this program through a step-by-step process. The condition is given here. While start less than equals to n, if this condition met, then the mid will be already this int is used as typecasting. Then if key equals to sorted list mid, the number will found. Otherwise, elif condition jump to this elif. If this is false, then again it will jump to this last elif. Just see what is the output of this program binary search. So we have to run this code by getting run option and click here on module. Enter the size of the list. Suppose we are entering the size as 5. Okay, enter any number. Number is 34, then 56, 78, 90, 100. Okay. Now see, the list will be sorted as 34, 56, 7, 8, 900. Enter the size of the list. Now see, binary search. Enter the number to be searched. Now we have to search as 90. Now see, 90 is position. 90 is at the position as 0, 1, 2, 3 index. So this is the part of binary search program. Now coming to the linear search. Linear search program is here. It is very easy linear search as it works through in a sequential pattern. Here no condition is there. Only we have to search through all the indexing. If this search will match the index of the value, then it will return as true and it will return as search will be successful. You see this also. So run karte hain now. Already we have assigned the value here. Enter a number to be searched. So now we want to check from this number only. I am going to give 54. 54 देते हैं देखिए. Now see, 54 is index 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. That is correct. अभी हम लोग इसको फिर से एक बार रन करते हैं. एक और रन करते हैं. And now we have to give here 100. 100 देते हैं. देखिए 100 was not found in the list क्योंकि यहाँ 100 था ही नहीं, तो सर्च अनसक्सेसफुल हो गया. ओके. नाउ थर्ड प्रोग्राम हम लोग देखते हैं sorting. Sorting is there. Insertion sort is there. देखिए इंसर्शन सॉर्ट में भी हमारे पास कंडीशन है. हम जानते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट एक एक को कंपेयर करके चेक करता है वैल्यू को. सी हियर हम इसको एक्सक्यूट करते हैं. एंटर द साइज ऑफ द लिस्ट. 5 डाल दिया हम लोग साइज. एलिमेंट डालते हैं हम लोग 12, देन 34, -9, 56, देन 76. नाउ सी द सॉर्टेड इज -9, 12, 34, 56, 76. सॉर्टिंग जो होता है वो either ascending or descending. Either ascending or descending rules को follow करता है. So this is the program for insertion sort. We can go through this insertion sort. आराम से आप जा सकते हैं. इसको practical में भी हम यूज़ करेंगे practical approach के लिए. Now coming to bubble sort. Bubble sort using user input. Both sorting technique has been used as user input. बबल सॉर्ट में एक एक इंडेक्स को चेक करता है. एक एक इंडेक्स को कंपेयर करके पास बाय पास वो रन करेगा. एंड सी हियर दिस इज द कोड फॉर बबल सॉर्ट. यूजर इनपुट के द्वारा है. यहाँ पे हम लोग जो है अपेंड करते हैं एक एक एलिमेंट को. इस लिस्ट में पहले इनपुट कर लेंगे, उसके बाद वहाँ से हम लोग सर्च परफॉर्म करेंगे. एंड सी हियर यदि सर्च मैच कर जाएगा तो स्वैपिंग प्रोसीड्यूर. सर्च अगर मैच कर गया तो हमको क्या करना है, या तो अरेंज करना है असेंडिंग में. सबसे पहले असेंडिंग, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा सबसे बड़ा. डिसेंडिंग में भी सेम प्रोसीड्यूर चलेगा. इसको हम लोग एक्सेस करते हैं.
F5 से प्रेस करते हैं, एंटर द साइज ऑफ द लिस्ट, 5 डाल देते हैं साइज, एंटर द एलिमेंट इज 45, देन 9 minus 6, then minus 7, then 47. Now see, this is the index. देखिए -7 सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, then सबसे बड़ा. This is the procedure for finding in bubble sort. Now coming to the next topic is stack. Stack का हम लोग प्रोग्राम में आते हैं. Just see this program of stack. Stack हम लोग देखे थे. It's very easy, very simple program. आप ऐसे भी स्टैक को यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिकली. आप यहाँ देखिए, जस्ट सिंपल है. श्रेया, मदिया, लवली, अंजलि, आई हैव शेयर्ड, प्रिंट कर रहे हैं स्टैक. यहाँ पे आप प्रिंट कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं. तो स्टैक हम जानते हैं कि स्टैक टॉप से ही क्या करेगा, इंसर्ट भी करेगा और टॉप से डिलीट भी करेगा, है ना. डिलीट मतलब पॉप फ्रॉम टॉप एंड पुश फ्रॉम टॉप, दोनों टॉप से होता है. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है. इसको हम एक्सेस करते हैं, रन करते हैं. देखिए ये श्रेया, मदिया, लवली ये ऑलरेडी था. अभी हम लोग उसमें इंसर्ट कराए थे क्या क्या, अमन, प्रशांत और मयंक. उसके बाद हम उसको पॉप किए हैं. तो पॉप करने के बाद ये रिजल्टेंट वैल्यू आया. ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड द एल्गोरिथम फॉर दिस स्टैक. अभी हम लोग आगे चलते हैं. स्टैक थ्रू यूजर इनपुट देख लेते हैं. स्टैक यूजर इनपुट के बेसिस पे कैसे ये काम करता है. देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है. एंड दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन. ये बोर्ड में हमेशा पूछा जाने वाला सवाल सब है. आप यहाँ पे देखिए चॉइस दिया गया यूजर के द्वारा 1, 2, 3, 4 और सब में 1 में है एंटर योर चॉइस, एंटर नंबर, डिलीशन के लिए है, फिर आपको उसको रन करने के लिए है. इसको हम लोग एक्सेस करते हैं. पुश हम चाहते हैं पहला में पुश करें, एंटर एनी नंबर, हम 45 के लिए कंटिन्यू यस. देन y इज़ नॉट डिफाइंड. यहाँ पे y कैपिटल हो सकता है. यहाँ पर हम देख सकते हैं यस, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है यस. दैट मीन्स हमें यहाँ पे हम यहाँ पे लेते हैं 1, एंटर योर नंबर 45, देन y यस यस. नेम एरर, कहीं पे मिस्टेक आ गया इसमें. Okay, now we can see using this stack, we can use this program, but basically this will give some resultant value as like previous program. इसके जैसा आपको input मिल जाएगा. और last one is Q. Q हम यहाँ पे देख सकते हैं. Q में भी हम लोग कैसे implement करते हैं. तो Q में जो रूल्स होता है फॉलो होता है FIFO. दैट मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. रिमूव होगा, इंसर्ट होगा, दोनों पहले से ही किया जाएगा. देखिए आप इस तरह से इनिशियल क्यू क्या है ABCD. उसके बाद हम लोग उसको इंसर्ट कराए और उसके बाद रिमूव करने के बाद वो क्यू क्या हो गया, ब्लैंक में पूरा ब्लैंक एम्प्टी हो गया. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे वर्क हुआ है, ये परफॉर्म कैसे किया है. यहाँ पे इसका कोड है. हर एक एलिमेंट को रिमूव करने के लिए यहाँ पे इंडेक्स लिखा हुआ है. सो दिस आर द प्रैक्टिकल अप्रोच फॉर data structure in Python. Hope so it will clear your practical skill regarding Python. Thank you all.